Hello dear student of 10th class. Yesterday we have completed our chapter 3rd to a story about flying, and now it's time to understand the poem of chapter 3. There are two poems in chapter 3, and the first one is how to tell wild animals, but as you know that CBSE recently published a new syllabus for the year 2020-2021. So CBSE cut down 30% of the syllabus. So this poem, how to tell wild animals, now deleted, and we have to read and understand the only one poem of this chapter, and this is the Ball poem written by John Berryman, as you can see on the box, and you can see also on your book. In the box, a boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक लड़के ने एक गेंद जो है वो खो दी है और वो बहुत दुखी है, और दूसरी बॉल खरीदना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत महंगी नहीं आती है. Why then is the boy so upset? फिर बच्चा इतना अपसेट क्यों है, ये हमको इस पोयम में मिलेगा, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा इसका हम अब रीड करने जा रहे हैं. सो लेट्स सी. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. So this is the first stanza of this poem. Now listen carefully. I am going to explain this stanza in English and Hindi respectively. So in this line, the poet asks his readers a question. He is asking means he is asking to us. He has seen a young boy's ball rolling away from him, bouncing happily on its way, and finally falling into the water. He asks his readers what the boy should do now. तो इन लाइनों में जो है वो कवि हमसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक जो छोटा बच्चा है उसने गेंद खो दी है, और उसके हाथों से बॉल निकलकर खुशी से उछलते हुए पहले गली या रास्ते में चली गई, और फिर प्रसन्नतापूर्वक अदृश्य होते हुए पानी में चली जाती है. तो वो अब जो भी रीडर्स उनसे पूछते हैं कि अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए, और व्हाट इज़ द बॉय नाउ, बच्चा कैसा है जिसने गेंद खो दी है, और उसे अब क्या करना है, व्हाट इज ही टू डू. सो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड स्टेंजा. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor
where his ball went. So in these lines, the poet thinks for a moment that he ought to console the boy who has lost his ball by telling him that there will be other balls just like that one which he will come across sooner or later. However, he understands that such false consolation will not make the boy feel any better. A feeling of grief has come over the boy. He stands very straight for some time and then starts shivering all over. He watches the ball go into the harbor and down in the water, and he feels that his childhood has also taken the same route away from him. At such a time, the poet feels that it would be wrong to go up to the boy and intrude on his solitude. Giving him a dime to purchase another ball will not hold any value for him. So, अब ये कहते हैं कि यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि उस बच्चे को कि दूसरी गेंद भी तो है, और एक दुख ने उसको इस तरह हिला दिया है जैसे भाई एक पहले तो एक कठोर रूप से जब बॉल जा रही थी तो एक कठोर बनकर, जिसके लिए वर्ड आया है रिगिड, ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग होता है, कांपना। हार्बर तो आप जानते हैं बंदरगाह, और तो इस तरह से वो दुख ने उसको जैसे जकड़ लिया, एकदम ठोस बन गया है, और उसके बाद वो कांपने लगता है और अपने सारे दिनों के बारे में उस बंदरगाह में घूर कर देखता है जहाँ उसकी गेंद चली गई है। तो ये कहते हैं कवि कि अब उसको ये कहना बेमतलब का है, कोई मतलब नहीं है उसका बोल के कि भाई दूसरी बॉल भी तो है, क्योंकि इस तरह दुख ने उसको जकड़ लिया है और वो एकदम कठोर बन के काँपते हुए खड़ा हुआ है। जहाँ पे नीचे देख रहा है, जहाँ पे वो पानी में, चूँकि बंदरगाह है वहाँ पे जहाँ पे बॉल चली गई है उस समुद्र के जल में, सारा दिन वहाँ उसने अपना बिताया है उस बॉल को देखते हुए, या उस बॉल को जाने के बाद, पानी में जाने के बाद उस दुख से उसने बिताया है। इसलिए वो कहते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, आई वर्ड से स्टार्ट होगा कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। तो वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मतलब वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, जो बहुत सारी मटेरियल है, जो संपदा है, जो दुनिया उसका उपयोग कर रही है। वर्थलेस यानी यूजलेस होता है, डाइम यानी आप जानते हैं कॉइन। तो ये कहते हैं हमारे जो पोएट हैं जॉन वेरीमैन कि अब उसको ये कहना कि एक डाइम की, कुछ पैसों की ही तो दूसरी बॉल आ जाएगी, पर उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब वो इसमें उसके जो दुख ने उसको जकड़ा है उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो ये क्वेश्चन ही बनता है कि क्यों हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अब इसका आंसर है बिकॉज, जो वहाँ आगे दिया गया है कि ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external. So in these lines the poet tells us that the little boy is undergoing a transformation. He is just now coming to the realization that the ball was his responsibility, as many things will be after this in this world. Everything you own is our responsibility, and you must keep those things safe. However, nothing you own will be yours forever. Other people will take away your balls,
or it will get lost in some way or the other. No one will buy another ball for you. Money is the only something you can show off, but ultimately it cannot buy you inner peace. Here the ball is a symbol for all of one's possession, and the poet is saying that we will certainly lose them one day, and that they cannot be easily replaced. तो इसमें आगे कवि कहते हैं कि इसलिए उसके दुख में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कोई वन टाइम की ही तो दूसरी बॉल आ जाएगी, पर वो ये समझते हैं कि नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इतनी सारी संपदा है दुनिया में, उसको अपना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला कर्तव्य यहाँ से समझ में आएगा, उत्तरदायित्व समझ में आएगा कि मुझे एक बॉल दी गई थी, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बाद उसके जीवन में बॉल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं, जिसको उस संभालने का उत्तरदायित्व उसका रहेगा, और सारी चीज़ें वो संभाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ छोड़ते चले जाएंगी। तो उसको इस दुख का निर्वहन करने की क्षमता उसको सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ खोएंगी उसके जीवन से चली जाएंगी धीरे धीरे, वो दुख को झेलना उसके अंदर ये आदत अब आ जानी चाहिए। वो कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस ऑलवेज। लोग बॉल खरीदते हैं और बॉल हमेशा गुम जाती है। बॉल को आप बॉल ही लें या कोई और भी चीज़ समझ सकते हैं, और वो हमेशा कोई हर चीज़ खोएगी, कभी न कभी उसका अंत होगा। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई उस जो जिस चीज़ का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नई बॉल है, धीरे धीरे वो फूटेगी, खराब होगी, तो कोई दुकानदार उसको वापस भी नहीं खरीदेगा, वो तो नष्ट ही होना है। इसीलिए लिखा है कि नो वन बाइज ए बॉल बैक। और मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक बाहरी तत्व है, इससे आपको इनर पीस नहीं मिल सकती। कि आप अगर किसी बॉल को आपने खो दिया, वो बॉल आपको बहुत प्रिय थी, अब वो गुम गई है, अब पैसे से आप दूसरी बॉल तो खरीद लोगे, लेकिन आप जो है अपनी आंतरिक शांति उस दूसरी बॉल खरीदने से, या उस पहली बॉल जो आपको बहुत प्रिय थी उसका दुख आपका कम नहीं हो सकता दूसरी बॉल खरीदने से। तो now it's time to learn last stanza of the poem. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So in these lines the poet says that the boy's eyes have become filled with an awful sadness, but that behind all the grief he is learning an important lesson. He is learning about the loss of things one considers precious. He is learning a lesson that every man must learn, and one that man must learn again and again. He is learning how to accept the loss and then move on. Suddenly the boy is brought back to his sense after hearing the sound of a whistle nearby. He can no longer see the ball at all. तो तब ये कहते हैं कि वह अपनी निराश आँखों के पीछे से उस खोने के दर्द को या हानि के उस अर्थ को सीख रहा है, यह जानते हुए कि अब वह कैसे उस दुख के साथ खड़ा रहे, आगे बढ़े। जैसे हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन ये जान जाता है और जानना भी चाहिए, और काफ़ी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक जानते हैं कि वे कैसे इस दुख का निर्वहन करते रहें। कई लोगों को बहुत समय लग जाता है, कई इससे जल्दी किसी भी दुख से उबर जाते हैं। तो वह ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और निराश आँखों के पीछे वो भी सीख रहा है अभी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी यानी होता है प्रकृति, नेचर, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, समझ या ज्ञान। दुख वहन करने का ज्ञान सीख रहा है वो, उस दुख में कैसे हाउ टू स्टैंड अप। जब कोई चीज़ आपसे खो जाएगी, बहुत प्रिय चीज़, चाहे वो प्रिय जन हो, आपके प्रिय अपने हों, कभी न कभी वो भी आपसे बिछड़ जाएंगे,
कोई आपकी महत्वपूर्ण चीज़ हो, हर चीज़ को कभी ना कभी खोना है, उस समय कैसे हमें अपने आप को स्टैंड करना है ये सीख रहा है वो। और हर व्यक्ति नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो जान रहा है वही बात जो हर व्यक्ति एक न एक दिन जान जाता है। कई लोगों को बहुत समय लग जाता है लंबा कि हाउ टू स्टैंड अप ये सीखने के लिए। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल of all stanza of this poem. So in next video we will discuss question answers of this poem. So thank you very much for watching, and stay at home, stay safe, complete your writing work, because your first term exam, first periodic test is going to conduct on the month of August. Thank you very much.